Welcome, dear students. Today we will discuss our chapter light, okay, reflection and refraction. We will discuss very important questions of this chapter, and we are nowadays only discussing those questions which came in board examination. Okay, these are the questions which came in 2010 to 2019. So these are really very important question, and you know that always these questions are repeated. Okay, now I will discuss some important questions to you. Okay, if you face any kind of problem, because I am sending PDF with it also, if you face any problem in any question you should ask. Okay, so in this PDF at first I am concentrating in this video only in 1 marks questions. Okay, so some questions are very easy, so no problem to solve them, and no need to discuss. Okay, because we have already done all these questions. So, and I want to say one thing to you, that send these questions to me also. If you are going through these videos, so solve these questions, write these questions in your copy and then send me. Okay, now at first this is define the term reflection, we know about this. Okay, I will discuss only important questions to you in this video. Okay, this question is really very important. Question number 4: if you want to see an enlarged image of your face, which type of mirror you will use? Okay, and where will you place your face? So this question is very important. As we know that we have three mirrors: concave, convex and plane mirror. Okay, we use plane mirror in our home. We daily see our that plane mirror, and we know that plane mirror forms an image which is just same size of an object. Okay, but in this question it is asking about enlarged image. It means that we are not using now plane mirror, because plane mirror does not make enlarged image. Plane mirror only make same size image. Okay, number 2, now we have two other mirrors: concave mirror and convex mirror. Concave mirror has 6 cases, okay, and convex mirror has only 2 cases. And we should know this thing, that convex mirror always forms diminished image. ठीक है, बहुत छोटी इमेज बनाता है कॉन्वेक्स मिरर. ठीक, और जो कॉनकेव मिरर होता है वो अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके की इमेजेस बनाता है, और एनलार्ज इमेज हमको सिर्फ कौन से मिरर में देखने को मिलेगी? कॉनकेव मिरर में. ठीक है, अब इतना हमको पता है. अब सबसे पहले हमने मिरर तो पहचान लिया. ठीक है, फर्स्ट आंसर हो गया हमारा. अब बोलता है वेयर विल यू प्लेस योर फेस. अब आप अपना फेस कहाँ पे रखेंगे? ठीक है, आपके पास कॉनकेव मिरर है. अब कॉनकेव मिरर आपके पास है, तो अब आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे? बट यू शुड नो कि कब आपको एनलार्ज इमेज देखने को उसमें मिलने वाला है. ठीक है, और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जब आप अपना फेस देखोगे, यू वांट टू सी योर फेस इरेक्ट, नॉट इन्वर्टेड. ठीक है, तो एक ही कंडीशन में इरेक्ट इमेज बनती है. ठीक है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है, और आपका फेस जो होगा वो लार्जर दिखेगा, यानी मैग्नीफाइड दिखेगा. वो केस कौन सा होता है? जब आप अपने फेस को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे. ठीक है, सो दिस इज द आंसर. नाउ दिस वन. ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. यहाँ अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता मिरर के केस में, तो वो कॉन्वेक्स मिरर होता. लेकिन लेंस के केस में कौन सा ऐसा लेंस है जो हमेशा इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है? वो कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस. ठीक है, यू शुड नो दिस टर्म ऑल्सो. नाउ दिस वन, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ पावर ऑफ लेंस? ठीक है, डायोप्टर उसका यूनिट होता है. यू शुड नो द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर. ठीक है, बाकी और चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं. ओके, आई एम explaining only important questions which are which in which you can face some problem. ठीक है, आप अगर और क्वेश्चन में कहीं पे प्रॉब्लम होती है, यू कैन आस्क. ठीक है, ओके. प्लेन मिरर की सारी हमको प्रॉपर्टीज पता है, कोई प्रॉब्लम. एंड दिस क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट. ओके, इसको आप अच्छी तरीके से मेमोराइज कर लेना. व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर? ये पूछ रहा है आपसे. ठीक है, अब प्लेन मिरर इस तरीके का होता है. दिस इज अ प्लेन मिरर.
अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है वो, ठीक है। अब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते थे, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब इसमें तो कोई कर्वेचर है ही नहीं, एक तरीके से आप बोलोगे सर इसमें तो कोई कर्व है ही नहीं, है ना, कर्व इस तरीके से होता है। सो यू शुड नो दिस पॉइंट, ठीक है। ये इनफाइनाइट लेंथ का, ठीक है, इसमें इनफाइनाइट कर्वेचर है, ये मान के चलो कहीं इनफाइनाइट। तो एक बात हमेशा याद रखना, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, ठीक है। और अगर इसका फोकल लेंथ आपसे पूछा जाए तो दैट इज जीरो, ठीक है। फोकल लेंथ इसका कितना होता है, जीरो होता है। आप इसको ऐसे ही इसी तरीके से याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय द पैरेलल मिरर्स, ठीक है। ये भी आपने डायरेक्ट मेमोराइज करना है इस चीज़ को। अगर दो पैरेलल मिरर्स हैं, ठीक है, दीज आर द पैरेलल प्लेन मिरर्स, आई शुड से प्लेन मिरर्स, ओके, दीज आर द पैरेलल प्लेन मिरर्स, ठीक है। इस तरीके से प्लेन मिरर्स हैं, दोनों को पैरेलल लगा, इसके सामने अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो उससे आपको बहुत सारी इमेजेस देखने को मिलती हैं, इनफाइनाइट इमेजेस देखने को मिलती हैं, ठीक है। सो दिस इज ए आंसर। एंड यू शुड नो अबाउट प्रिज्म, ठीक है। इस तरीके से प्रिज्म होता है, तो प्रिज्म इज अ ग्लास ऑब्जेक्ट, ये ग्लास का बना होता है विथ टू ट्रायंगुलर बेसिस, ठीक है, विथ टू ट्रायंगुलर बेसिस एंड थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस इंक्लाइंड एट एन एंगल। आपने 3D डायग्राम आई थिंक देखा होगा, ठीक है। तो इसमें दो ट्रायंगुलर बेस होते हैं और तीन रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होते हैं, ठीक है, ओके। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर सीइंग ट्रैफिक एट द रेयर। यानी जो हमारे पास व्हीकल्स होती हैं, हमारी जो गाड़ियाँ हैं, ऑल ऑटोमोबाइल्स, ओके, तो जो it has a rear view mirror and that mirror is convex mirror in nature। तो वही पूछ रहा है व्हाट आर द एडवांटेज एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। आपने कहीं कहीं पे प्लेन मिरर लगाए हुए भी देख सकते हैं। तो एडवांटेज क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर का, गाड़ी के बगल में कॉन्वेक्स मिरर क्यों लगा होता है, क्योंकि उस मिरर से हमको एक बहुत अच्छा खासा बहुत बड़ा व्यू देखने को मिल जाता है, लार्ज फील्ड व्यू हमको दिख जाता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, हम एग्जैक्ट डिस्टेंस व्हीकल की जो है वो पता नहीं कर पाते, इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द व्हीकल एट द रेयर, ठीक है। जो हमको अपने मिरर में गाड़ी दिख रही होती है उसकी एग्जैक्ट डिस्टेंस हम नहीं बता पाते हैं, ठीक है। दीज आर द दिस इज़ द मेन डिसएडवांटेज। और एडवांटेज मैंने बता दिया, उससे हम लोग एक लार्ज फील्ड ऑफ व्यू हमको पता चल जाता है, ठीक है। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स, okay. Now some multiple choice questions are here, these questions are also really very important, okay। So this one you can see here because क्योंकि कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली होती हैं बट वी कैन अंडरस्टैंड इट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 4 स्टूडेंट्स मेजर्ड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर वाइल परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट एज शोन इन फिगर, ठीक है। 4 स्टूडेंट हैं वो फोकल लेंथ मेजर कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की, ठीक है, एक्सपेरिमेंट में। तो आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें ठीक है करेक्ट इमेज कौन सी इसमें आपको दिख रही है, कौन सा करेक्ट है, ठीक है। आपके पास 4 हैं, A B C और D, ठीक है। आपने इसमें सोचना है कि कौन सा वाला आपको सही लग रहा है एकदम से। अब आपको पता है, ठीक है, जब भी ये आप कॉनकेव मिरर सपोज कर लो, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर पे यहाँ पे लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, एंड ऑल लाइट रेज आर पैरेलल, ठीक है। तो जब फोकल लेंथ निकालनी होती है, ठीक है, फोकल लेंथ, दिस इज अ कॉनकेव मिरर। अगर आप देखो, मैं आप लोगों से क्या बोलता था, हम तो प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते थे, पैरेलल लाइन लाइट रे इस तरीके से ड्रॉ की जाती थी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से आएगी उसी को हम लोग क्या बोलते थे, फोकस। मैंने आप लोगों को बार बार बोला है कि जब भी हम फोकस बनाएंगे, ठीक है, अब हमने इस तरीके से फोकस, तो जितनी भी लाइट रेज हों वो आपस में कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, पहली बात है। बिना पैरेलल लाइट रेज के हम फोकस नहीं बना सकते। अब दूसरी बात, अगर आपने 2 या 2 से ज़्यादा लाइट रेज ड्रॉ करनी है उसके लिए, ठीक है, एक और ड्रॉ कर दी, तो ये भी टकरा के कहाँ से कट होगी, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे कट होती है, यानी ऑल लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन विल मीट एट द सेम पॉइंट, एट दैट सेम पॉइंट इज द फोकस ऑफ दैट मिरर, ठीक है। तो इस कंडीशन में दिस इज नॉट फोकस, है ना, इस वाले में भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ओनली दिस वन, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज सारी की सारी एक ही पॉइंट पे इसी वाले पे मिल रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने चीज़ों को समझना है, ओके। नाउ यू कैन सी इन दिस वन, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, शायद आपको थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा अपना, ठीक है, कोई बात नहीं, घुमा लोगे इसको, ओके। नाउ
in this question. Okay, this is also very important question number 16. While tracing the path of a ray of light passing through a glass slab, ये glass slab है, ठीक है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये आज तक के इतिहास में ये मान के चलो ऑलमोस्ट हर साल ही आता है, ठीक है. कहीं ना कहीं ये टपक जाता है ये क्वेश्चन. तो ये है आपका ग्लास स्लैब. अब इस ग्लास स्लैब में हो क्या रहा है, लाइट हमने इंसिडेंट करवाई है. लाइट जब हम इंसिडेंट करवाते हैं वाइल ट्रेसिंग द, अब हम जब लाइट को ट्रेस करते हैं तो वो होता क्या है, इस तरीके से चीज़ें आती हैं. ये इंसिडेंट इस तरीके से, रेज इस तरीके से निकलती हैं, ठीक है. तो अब 4 स्टूडेंट्स इंटरप्रेटेड द रिजल्ट. अब उन्होंने ये सब काम किया. अब उसके बाद 4 स्टूडेंट ने इस तरीके से रिजल्ट निकाला. देखो, जब भी ग्लास स्लैब से लाइट रे पास होगी, ये कौन सा मीडियम है, रेयर, ये डेंसर, ये रेयर, यानी मान के चलो ये एयर है, ये ग्लास है और ये एयर है, एयर ग्लास एयर, ठीक है. तो होता क्या है इस कंडीशन में, अब सीधी सी बात है, ग्लास स्लैब को हम एयर में ही तो रखेंगे तो ये एयर होगा, ठीक है. फिर ग्लास होगा, फिर एयर होगा. हम इसी तरीके से प्रैक्टिकल करते हैं. ओके, जब यहाँ से लाइट रे इस तरीके से निकलती है तो हमको पता है कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है. तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा. तो अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूँ आई और आर में कौन सा एंगल बड़ा होगा, देन यू विल से सर आई बड़ा होगा, आर छोटा होगा, ठीक है. बिकॉज व्हेन लाइट रेज मूव्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन इट कम्स क्लोज टू द नॉर्मल. तो यहाँ पे जो होगा आर क्या होगा, पास, आर कम होगा और आई ज़्यादा होगा, ठीक हो गया. दूसरी बात, अब देखो थोड़ा सा तो आप लोग मैथ्स भी जानते हैं. यहाँ पे ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ठीक है. ये जेड बन रहा है ना. हम तो ऐसे इसी तरीके से मैथ्स पढ़ते थे, ठीक है. अब आप कैसे मैथ्स पढ़ते हैं यू नो, ठीक. ओके, तो यहाँ पे जेड बन रहा है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है. ये एंगल आपके इक्वल हुए और एक लाइट रे यहाँ से निकल रही है. फिर अब एक चीज़ बताओ, आर और ई में कौन सा एंगल बड़ा होगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा. आर और ई में, यानी ये आर और ये ई दोनों में कौन सा एंगल बड़ा होगा. अब सीधी सी बात है, ये कौन सा मीडियम है, डेंसर, और ये कौन सा मीडियम है, रेयर. जब लाइट रे डेंस से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर भागती है. नॉर्मल से दूर भागेगी तो ई बड़ा होगा आर से, ठीक है. ई बड़ा होगा आर से. तो एक चीज़ तो हम बता सकते हैं, यहाँ पे जेड बन रहा है ना, आर आर तब लिखा हुआ है उसने, ये ध्यान रखना. आई और आर में कौन बड़ा है, आई. आर और ई में कौन बड़ा है, ई, ठीक है. इतना हमको क्लियर है. ओके, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट एज वी डिस्कस्ड दिस ऑल्सो, ठीक है. कि जो ये लाइट रे है, अगर यहाँ पे ग्लास स्लिप नहीं होता, ये सीधे इस तरीके से निकल जाता, निकलता नहीं निकलता, ठीक है. अब लेकिन रियल में किस तरीके से निकल रहा है, इस तरीके से निकल रहा है. इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को बोलते थे हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट. ओके, दिस डिस्टेंस इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. ओके, अब दूसरी चीज़ जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और जो ये एंगल ऑफ इमरजेंस है, बोथ आर इक्वल. दीज एंगल्स आर इक्वल. ओके, प्रैक्टिकली we find this thing that angle of incidence or angle of incidence is equal to angle of इमरजेंस, ठीक हो गया. तो अब आपने इसके बेसिस पे जो भी हमारी, बस इतना सा नॉलेज है इसमें, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है. दिस इज अ रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब. जितना मैंने आपसे बोला इतना आपको पता है, यही पूरी कहानी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता इसमें. तो इसी के बेसिस पे कुछ ना कुछ हमको यहाँ से मिल जाएगा. देखो मैंने एक चीज़ क्या बोला, आई और ई इक्वल होते हैं. तो सबसे पहले ऑप्शन में ये ढूंढो कि आई और ई कहीं पे इक्वल दिख रहा है. हाँ, यहाँ पे आई और ई इक्वल दिखा हुआ है. और कहीं दिखा है, और कहीं भी आई और ई इक्वल नहीं दिख रहा. तो सीधे नहीं, एक यहाँ पे भी दिख रहा है आई और ई इक्वल, ठीक है. ओके, अब फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है. अब हमको दूसरी नॉलेज देखना पड़ेगा अपना, ठीक है. यहाँ पे क्या लिखता है, आर बड़ा है ई से, आर बड़ा है ई से. इज इट राइट और नॉट. अभी अभी आपको बताया था कि जब डेंस से रेयर में जा रहा है तो दूर जाएगा तो ई बड़ा है, ठीक है. ई बड़ा है तो पहला वाला भी कैंसिल हो गया, तो 100% लास्ट वाला ही सही होगा. देखो आई और ई इक्वल है, ठीक है. इस पर दिखा हुआ है आई और ई इक्वल है और ई बड़ा है आर से. सो दिस इज राइट ऑप्शन, यानी ऑप्शन डी शुड बी योर आंसर, ठीक हो गया. सो दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है. बाकी ये 17 क्वेश्चन, ओके. इसमें क्योंकि ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड है. ओके, वी डिस्कस 18th क्वेश्चन, ठीक है. पैरेलल रेज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ डिस्टेंस ट्री इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर, जो स्क्रीन पे इमेज बनेगा, ठीक हो गया. ये देखो, ये है पूरी कहानी, ठीक है. आपके पास कोई ट्री है इस तरीके से, सॉरी, आपके पास ट्री है कहीं बाहर, ये इस तरीके से बोल रहा है. एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन. पैरेलल रेज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ डिस्टेंस ट्री, यानी एक ट्री है बहुत ही दूर है, ये मान के चलो, वहाँ से पैरेलल रेज आ रही हैं और वो कॉनकेव मिरर पे पड़ रही हैं एंड फॉर्म एन इमेज ऑन द स्क्रीन, और इमेज पे एक स्क्रीन पे इमेज बन रही है, ठीक है. द डायग्राम करेक्टली शोइंग द इमेज ऑफ द ट्री. अब कौन सा डायग्राम इसमें करेक्ट है हमको ये देखना है, ठीक है. ये कहीं दूर है ना, बहुत दूर सुदूर है ना, कोई ट्री है, वहाँ से पैरेलल लाइट रेज, उसके टॉप से हमने लाइट रेज लिए हैं इस तरीके से. यहाँ पे 4 पैरेलल लाइट रेज, यहाँ 4 4 4, नो प्रॉब्लम, ठीक है. दीज लाइट रेज आर कमिंग एंड दे आर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम दिस कॉनकेव मिरर. दीज आर द कॉनकेव मिरर्स. नाउ
अब इन कॉनकेव मिरर पे ये टकराने के बाद वापस आएगी। अब ये वापस आ रही है, ठीक है। अब ये इमेज बनाएगी। अब इमेज किस तरीके से बनेगी और क्या बनेगी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, जब पैरेलल लाइट रेज आपस में पैरेलल आती हैं कॉनकेव मिरर में, ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बनती है? फोकस पे इमेज बनती है। यू शुड नो दिस पॉइंट। फोकस पे इमेज बनेगी। ओके, अब फोकस पे जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड होगी या सीधी होगी? पहली बात ये बताओ। ऐसे कुछ ट्री होगा, ठीक है, इस तरीके से पेड़ होंगे इस ट्री के, तो सीधी तो इमेज कभी नहीं बन सकती। ये तो सीधे सीधे गलत हो गया पहला ऑप्शन, ठीक है। ये तो जैसा ट्री है वैसा बना के दिखा दे रहा। कॉनकेव मिरर में अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो कभी भी जब इमेज फोकस पे बन रही होती है, ठीक है, तो वो कभी भी कैसी नहीं बनती, ठीक है। ओके, ठीक है, तो ये तो सीधे सीधे कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे इस तरीके की इमेज बन रही है, नॉट नॉट राइट, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज। देखो अब ये बिल्कुल इन्वर्टेड लग रहा है, तो सी सी इज ए करेक्ट ऑप्शन, ठीक हो गया। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे देन यू विल गेट आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आई एम ऑलरेडी सेंडिंग दिस PDF टू यू। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम है यू कैन आस्क टू मी, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन करके मुझे भेज दो बेटा, प्लीज़ सेंड मी। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को देखना। फॉर द रिफ्रैक्टिंग रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब द डायग्राम इज गिवन बिलो, ठीक है। ये है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमको बताना है, ठीक। अब सीधी सी बात है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? ये इंसिडेंट रे होगी, ठीक है, ये नॉर्मल है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सीधी सी बात है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया एक्स। दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ पूछता है हमसे एंगल ऑफ इमरजेंस। सीधी सी बात है, ये नीचे वाला एंगल जो लास्ट में बाहर निकलता है, ठीक है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, तो वो हो जाएगा क्या? एम। एंगल ऑफ इमरजेंस क्या हो जाएगा? एम। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आया हुआ है? एक्स। और क्या पूछता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो आपका क्या है? पी, ठीक है, पी। वैसे P और Q दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। P और Q क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। एक्स एम पी या एक्स एम क्यू, अगर ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है। देखो एक्स एम पी, क्यू तो इसने कहीं लिखा ही नहीं है, ठीक है, तो तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सिर्फ ये होगा P, ठीक है, एक्स एम पी। दिस इज योर आंसर। ओके, सो these are a really very important question. Solve these questions and send me, okay, in my personal number. Thank you very much beta.